Hello dear children, welcome back to the Acknowledge series by Amit Publishing House. I am Vandana and we are doing book 8. So this is your English grammar book and the name of your book is English Grammar plus Skills Unleashed Workbook. So children, let's start with a new chapter and this is chapter number 19 of your book and the name of the chapter is Letter writing. Yes, letter writing. A letter is a conversation through written or typed words. So a letter क्या है? एक conversation, एक बातचीत है दो लोगों के बीच में जो written होती है या फिर typed होती है. When two persons want to communicate from a distance, a letter is presented into service. So जब दो लोग जो है एक साथ बात करना चाहते हैं बहुत ही दूरी से, so letter को present किया जाता है. So here is the first letter that we are going to learn and it is personal letters. So personal letters are written to friends, relatives, acquaintance and colleagues at work. So personal letter इन लोगों को लिखे जाते हैं. Those relations are mentioned here. Now they are written in a simple, familiar and informal style. So ये जो letter लिखे जाते हैं बहुत ही simple style में, एक familiar style में और बहुत ही informal style में. हम इसमें कोई भी formality नहीं करते हैं. हम बहुत ही we express our feelings to our relatives. Now here the sample is given. Let's read it. Write a letter to your friend inviting him to visit you during the summer vacation. So आपका जो friend है उसे आप invite करो अपने घर for what? For summer vacation. So summer vacations के लिए आप उसे invite करो. So here the sample is we are going to start with the address. आपको पता है first we write our address. हम अपना address लिखते हैं inside the letter and the address is 15 Bulls Club Road, Gulmarg. And after हम अपने address के बाद क्या लिखते हैं? Date. So here the second thing that we are going to write is date. तो date लिख दिया हमने, address लिख दिया हमने. Okay. After writing the address and the date, we are writing the salutation. Salutation लिख दिया. And whom you are writing the letter? आप अपने friend को लिख रहे हो. friend का name है Aryan. So dear Aryan, I am sure you have returned home from the NCC camp. So you have to start. आपको जो भी आप letter लिखेंगे आपको ऐसे start करना है. Means एकदम कूल होके आपको स्टार्ट करना है. मीन्स एकदम से ही कुछ पूछ नहीं लेना है या बता नहीं देना है. सो स्टार्टिंग आपको ऐसे ही करनी है. हाउ आर यू, आई होप दैट यू आर फाइन, आई एम डूइंग वेल, ऐसे स्टार्ट करना है. या फिर ऐसे जैसे यहाँ पे आपके लेटर में लिखा है. आई एम श्योर यू हैव रिटर्न फ्रॉम द एनसीसी कैंप. डू यू रिमेम्बर वी ऑफन विश टू पास समर वेकेशन टुगेदर. सो अब जो है वो उससे क्वेश्चन पूछ रहा है कि तुम्हें याद है पहले हम लोग जो है ऐसे सोचते थे कि काश हम लोग समर वेकेशन एक साथ मनाते. सो दिस ईयर वी हैव द बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर द सेम. अब आप उससे बता रहे हो कि इस साल हम समर वेकेशन एक साथ मना सकते हैं क्योंकि इस साल वी आर हैविंग द अपॉर्चुनिटी. वी हैव बीन हियर फॉर ओवर अ फोर्टनाइट. सो एक फोर्टनाइट हम पूरा यहाँ पे रुकेंगे. The country is lovely and the garden is bright with beautiful flowers. So now we have a swing under a banyan tree and we also enjoy boating in the lake. Wherever I go, I miss you. I very much wish you were here. My parents would be happy to have you with us for a few days. So here you can see, आपने describe किया उस place को जहाँ पे आप गए हुए हो. आप कितने दिन से वहां रुके हो वो बताया आपने. कैसी जगह है, वहां का गार्डन कैसा है, क्या क्या चीजें आपने वहां देखी. वहां पे एक स्विंग है एक बैनियन ट्री के नीचे, आपने बोटिंग की. ये सारी चीजें आप डिस्क्राइब करो अपने फ्रेंड को.
अब आपने लिखा है wherever I go I miss you, मैं तुम्हें हमेशा मिस करता हूँ जहां भी जाता हूँ, और ऐसी आशा कर रहा हूँ काश तुम यहाँ पे होती। My parents would be happy to have you with us for a few days. So मेरे पेरेंट्स को बहुत अच्छा लगेगा तुम यहाँ पे आते। You may be sure of much fun according to your own taste. And there is a lawn, there are herbs on the mountains. You can also enjoy your hobby of phone collecting. So आप माउंटेन पे भी जा सकते हो, वहाँ पे बहुत सारे हर्ब्स हैं आपको देखने को मिल सकते हैं, और यहाँ पे आप फोन कलेक्टिंग भी कर सकते हो। फोन्स एक टाइप ऑफ प्लांट्स होते हैं जो मार्शी एरिया में ग्रो करते हैं। द माउंटेन्स आर रियली फुल ऑफ जॉय, जो माउंटेन है वो जॉय से भरे हुए हैं। फ्रॉम हियर you will return much refreshed for your studies. यहाँ से तुम अगर आओगे तो यहाँ से तुम बहुत ज्यादा रिफ्रेश फील करके जाओगे। प्लीज डू कम इन्फॉर्म मी ऑफ योर अराइवल बाय टेलीग्राम। सो अगर तुम यहाँ पे आ रहे हो तो टेलीग्राम के थ्रू मुझे अपना अराइवल के बारे में बता देना। विथ रिस्पेक्टफुल रिगार्ड्स टू योर डियर पेरेंट्स, और लास्ट में आपने उसके पेरेंट्स को रिगार्ड्स भी पे कर दिया, नमस्ते भी कह दिया। योर्स एवर निश्चिल। सो लास्ट में आपने यहाँ पे क्लोजिंग फ्रेज भी लिख दिया, एंड लास्ट वी हैव रिटन अ नेम, आपने अपना नेम लिख दिया है। सो चिल्ड्रन, अब यहाँ पे आर्यन को निश्चिल ने बताया है कि वो एक ऐसी जगह गया है जहाँ पे ये सारी चीजें जो उसने यहाँ पे मेंशन की। सो नाउ ही इज टेलिंग हिज फ्रेंड आर्यन कि तुम भी यहाँ पे आ जाओ, तुम आओगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा, हम साथ में मस्ती करेंगे, हम साथ में एंजॉय करेंगे, हमारा ड्रीम फुलफिल हो जाएगा जो हमने देखा था कि हम एक साथ जो है समर वेकेशंस बिताएं। सो अगर तुम आ रहे हो प्लीज इन्फॉर्म मी थ्रू टेलीग्राम और अपने पेरेंट्स को रिगार्ड्स देना, एंड देन यू हैव कंक्लूडेड योर लेटर। सो चिल्ड्रन, दिस वाज योर इनफॉर्मल लेटर, जिसको आपने अपने फ्रेंड को भेजा था, अपने दिल की सारी बातें उसे बता दी। नाउ लेट्स कम टू द फॉर्मल लेटर। अगला जो टॉपिक है वो है फॉर्मल लेटर्स। सो फॉर्मल लेटर्स आर रिटन टू पर्सन और फर्म्स फॉर एनी फॉर्मल इंफॉर्मेशन। सो किसी भी पर्सन को या किसी भी फर्म को, मीन्स कंपनी को हम ये लेटर लिखते हैं किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन देने के लिए। दे इंक्लूड लेटर्स टू फर्म, इंस्टीट्यूशंस, ऑफिशियल्स एंड टू द प्रेस। सो यहाँ पे जो भी लेटर है वो फर्म्स के लिए होते हैं, इंस्टीट्यूशंस के लिए होते हैं, ऑफिशियल्स के लिए होते हैं और प्रेस के लिए भी होते हैं। अ गुड फॉर्मल लेटर मस्ट बी ब्रीफ, क्लियर एंड टू द पॉइंट। सो जब भी हम फॉर्मल लेटर लिख रहे हैं तो इन पॉइंट्स को हमें ध्यान में रखना है कि जो भी फॉर्मल लेटर होता है वो ब्रीफ होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए और टू द पॉइंट होना चाहिए। इधर उधर की बातें हम उसमें नहीं करनी है। नाउ राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ टाइम्स ऑफ इंडिया दिल्ली अबाउट द पुअर कंडीशन ऑफ द and the negligence of the medical staff in some of the government hospitals of Delhi. So आपको क्या करना है, टाइम्स ऑफ इंडिया के एडिटर को दिल्ली के टाइम्स ऑफ इंडिया के एडिटर को आपको एक लेटर लिखना है। सो वी नो किसे लिखना है, तो हम वी नो दिस पॉइंट। एंड क्या लिखना है लेटर में, द पुअर कंडीशन ऑफ द नेग्लिजेंस ऑफ मेडिकल स्टाफ in some of the government hospitals of Delhi. So दिल्ली के कुछ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जो मेडिकल स्टाफ है वो नेग्लिजेंस करता है, मीन्स मरीजों पे ध्यान नहीं देता है, उनकी देखभाल नहीं करता है। तो ऐसे में आप जो है इस पुअर कंडीशन को देख के आप उनको एक लेटर लिख रहे हो। साइन योरसेल्फ अमन ऑफ 15 2nd वसंत विहार दिल्ली। सो आप हैं अमन और आप कहाँ रहते हैं, आपका हाउस नंबर है 50 और आप 2nd वसंत विहार दिल्ली में रहते हैं। सो एज आई टोल्ड यू कि फर्स्ट यू हैव टू राइट डाउन योर एड्रेस। सो दिस इज योर एड्रेस, ये 2 लाइन्स आपके एड्रेस के हैं। नेक्स्ट आफ्टर दिस यू हैव टू राइट डाउन द डेट हियर। सो डेट यू हैव रिटन एंड देन अब आपको पता है कि अपना एड्रेस फिर डेट, उसके बाद जिसको हम लेटर लिख रहे हैं उसका एड्रेस लिखते हैं। सो हियर यू हैव टू राइट द लेटर टू द एडिटर, तो हमने द एडिटर लिखा है। टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर है तो टाइम्स ऑफ इंडिया लिख दिया है, और ये कहाँ पे है, दिल्ली में है, तो हमने यहाँ पे दिल्ली मेंशन कर दिया है। नाउ आफ्टर राइटिंग
जिस पर्सन को हम लेटर भेज रहे हैं उसके सारे डिटेल्स लिखने के बाद वी हैव टू राइट डाउन द सब्जेक्ट, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ फॉर्मल लेटर. फॉर्मल लेटर में सब्जेक्ट जरूर होता है. सो यू आर राइटिंग सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट में क्या है? पुअर कंडीशन. यू आर राइटिंग द अबाउट द पुअर कंडीशन. सो यहां से आपने लिखना स्टार्ट किया है, पुअर कंडीशन एंड द नेग्लिजेंस. अब आपने पूरी लाइन लिखी, पुअर कंडीशन एंड द नेग्लिजेंस ऑफ द मेडिकल स्टाफ इन सम ऑफ द गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स. बस यहां तक आपने लिख दिया, क्योंकि आप दिल्ली के एडिटर को लिख रहे हो, सो ही ऑलरेडी नोज कि आप दिल्ली के हॉस्पिटल्स की बात कर रहे हो. सो आपने यहाँ से लेके पुअर कंडीशन से लेके हॉस्पिटल तक आपने यहाँ पे सब्जेक्ट में एंटर कर दिया. नाउ अब आप जिस पर्सन को लिख रहे हो वो कोई भी हो सकता, सर मैम, तो आपने यहाँ पे लिखा सर, मे आई यूज द कॉलम of your widely circulated newspaper to draw the attention towards the poor arrangement and the negligent attitude of the staff in some government hospitals of Delhi. So अब आपने यहाँ पे उनसे परमिशन मांगी है कि क्या मैं आपके जो इतना बड़ा न्यूज़पेपर है जो सब लोग पढ़ते हैं, वाइडली सर्कुलेटेड न्यूज़पेपर मीन्स जो हर जगह हर कोई पढ़ता है, किस लिए यूज करना है? टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ टूवर्ड्स द पुअर अरेंजमेंट एंड नेग्लिजेंस एटीट्यूड ऑफ द स्टाफ इन सम गवर्नमेंट हॉस्पिटल ऑफ दिल्ली. सो ये रीजन है जिसकी तरफ मैं आपका अटेंशन ले आना चाहता हूँ और मैं आपके न्यूज़पेपर में ये बात छपवाना चाहता हूँ. A lot of patients are admitted in government hospitals in good faith. सो जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहाँ पे जो पेशेंट्स है वो बहुत ही गुड फेथ में वहाँ जाते हैं कि हम ठीक होके जाएंगे. सो इट इज अ पिटी दैट द फैसिलिटीज इन सम ऑफ द गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स आर वेरी पुअर. लेकिन भले वो लोग वहाँ पे इस आशा से जाते हैं कि हाँ हमारा इलाज हो जाएगा और हम ठीक हो जाएंगे, लेकिन देयर इज अ लॉट ऑफ नेग्लिजेंस हियर. वहाँ पे लोग जो है, वहाँ का स्टाफ लोगों पे ध्यान नहीं दे रहा है. देयर इज वेरी पुअर कंडीशन बहुत पुअर है. Most of the testing machines remain out of order. ज्यादातर जो टेस्टिंग मशीन है वो आउट ऑफ ऑर्डर है, मीन्स खराब पड़े हैं. The free medicines are rarely provided to the patient. So जो भी पेशेंट है उन्हें जो मेडिसिन है वो बहुत ही कम प्रोवाइड हो पाती है, फ्री मेडिसिन नहीं मिल पाती. The doctors never arrive timely. डॉक्टर टाइम पे नहीं आते. Patients have to wait for long hours. पेशेंट को बहुत देर तक वेट करना पड़ता है. The sub staff neglect the duty. जो सब स्टाफ है वो अपनी ड्यूटी से भागता है, वो अपनी ड्यूटी को निग्लेक्ट करता है. देयर इज नो क्लेanलीनेस इन द प्रेमाइसेस में बिल्कुल भी क्लेanलीनेस नहीं है. द कॉरिडोर्स रिमेन वेरी डर्टी एंड स्टिंगी. कॉरिडोर में बहुत ज्यादा बदबू है, गंदगी फैली हुई है. द मील्स प्रोवाइडेड टू द पेशेंट्स आर ऑफ पुअर क्वालिटी एंड अनहाइजीनिक. जो वहाँ पे जो मरीज हैं उनको खाना वहाँ पे मिलता है वो भी बहुत ज्यादा पुअर क्वालिटी का है और ऐसे ही खुले हुए खाने को वो परोस देते हैं, अनहाइजीनिक है. रेगुलर इंस्पेक्शन इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स कैन श्योरली चेंज द सिचुएशन. अब आपने प्रॉब्लम बता दी, यहाँ से यहाँ तक आपने इस पूरे पैराग्राफ में प्रॉब्लम बताई कि क्या क्या प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है वहाँ के लोगों को. नाउ यू आर गिविंग द सोल्यूशन हियर. अब आप यहाँ पे सॉल्यूशन दे रहे हो कि क्या चीजें हम कर सकते हैं. सो रेगुलर इंस्पेक्शन से क्या होगा? दिस कैन चेंज द सिचुएशन. चेकिंग द वर्किंग ऑफ डॉक्टर्स एंड सब स्टाफ एंड सुटेबल मेजर्स आर एक्सपेक्टेड फ्रॉम द अथॉरिटी फॉर द वेलफेयर ऑफ द पब्लिक. सो आप जो है चेकिंग करानी है कि डॉक्टर्स टाइम पे पहुंच रहे हैं, सब स्टाफ की चेकिंग कराएंगे या मेडिकल इक्विपमेंट्स की चेकिंग कराएंगे. सो इससे ये चीजें बेहतर हो सकती है. योर सिंसियरली अमन, अ कंसर्न्ड रेसिडेंट आपने लास्ट में लिख दिया क्योंकि आप इस प्रॉब्लम से बहुत ज्यादा परेशान हो, तो आपने लिख दिया कंसर्न्ड रेसिडेंट. सो लाइक दिस वी हैव टू राइट डाउन द फॉर्मल लेटर. नाउ योर चिल्ड्रन, अ फ्यू क्वेश्चंस आर गिवन.
the basis of reading the chapter को जैसे हमने पढ़ा, मैंने आपको जो भी चीजें समझाई, according to that you have to write the letters here. So the first question is you have to write a letter to congratulate your friend. Friend को letter लिखना है who has recently won साहित्य अकेडमी award. तो friend को इतना बड़ा award मिला है, so you are congratulating him. Write a letter to your brother describing a visit to the zoo. आप zoo गए थे तो अपने brother को बताओ कैसा लगा आपको वहां पे जाके. Now the third is write a letter to the editor of the newspaper explaining the evil influence of Facebook and WhatsApp. तो Facebook और WhatsApp के क्या क्या evil influence है उसके बारे में आपको editor को एक letter लिखना है. Editor किसी भी newspaper का हो सकता है, so you can write down the name of any newspaper here. Fourth is you have to write the letter to the chairman of Central Board of Secondary Education, means CBSE को एक letter लिखना है expressing the undesirability of students of junior classes in carrying heavy school bags. So heavy school bag बच्चे लेके जा रहे हैं तो उसके लिए आप letter लिख रहे हो. Suggest ways to reduce this burden को कम करने के लिए आप जो है कुछ ways suggest कर रहे हो. Sign yourself as Tarun of Ashok Nagar, Delhi. So आपको अपना नाम लास्ट में लिखना है Tarun and you live in Ashok Nagar, Delhi. Now the fifth letter is write a letter to your friend explaining her about your new school. So आप अपने friend को letter लिख रहे हो जिसमें आप explain कर रहे हो कि आपका new school कैसा है. The sixth question is write a letter to your mother about your life in hostel. So आप अपने मदर को एक लेटर लिख रहे हैं जिसमें आप बता रहे हो कि हॉस्टल में आपकी लाइफ कैसी थी. So these questions are to be done by yourself and you have to complete these questions in your notebook. And if you have any queries, you can ask me, children. So children, I think that you have understood what is letter writing and the types of letters that we have learned, formal and informal both. And if you have any queries, you can ask me in the comments. And I'll be waiting for you with a new video. Till then, stay tuned.